اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عزیز بچوں، میں آپ کا استاد عبدالرشید ڈار گورنمنٹ مڈل اسکول ترکپورہ سے ایک بار پھر حاضر ہوں۔ آج کا جو ہمارا سبق ہوگا وہ چوتھی جماعت کے لیے ہے، مضمون اردو، اور جو آج کا ہمارے سبق کا عنوان ہے وہ ہے کہنا بڑوں کا مانو۔ پیارے بچوں، آپ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 31 کھولیں جہاں پر یہ ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم شروع کریں گے، اس سبق کے اوپر کچھ الفاظ دیے گئے ہیں، پہلے ان پر ہم نظر ڈالیں گے اور ان کے معنی بھی آپ کو میں بتاؤں گا۔ پہلا جو لفظ ہے روک ٹوک، اس کا معنی ہے پیارے بچوں یعنی منع کرنا، باز رکھنا۔ دوسرا ہے امرت، امرت معنی ہے آب حیات۔ تیسرا جو لفظ ہے وہ ہے دشوار، دشوار معنی مشکل، کٹھن۔ اور ایک لفظ ہے صدمہ، صدمہ معنی ہے دکھ۔ اور آخری جو الفاظ اوپر دیا گیا ہے وہ ہے ذلت، ذلت معنی ہے رسوائی یا بدنامی۔ چلو پہلے ہم اس نظم کو پڑھیں گے اور اس کے خلاصے پر بھی نظر دوڑائیں گے۔ چلو ہم شروع کریں گے۔ کہنا بڑوں کا مانو، ماں باپ اور استاد، سب ہے خدا کی رحمت، ہے روک ٹوک ان کی، حق میں تمہاری نعمت، کڑوی نصیحتوں میں ان کی براہ امرت، چاہو اگر بڑائی کہنا بڑوں کا مانو، ماں باپ کا عزیزو مانا جس نے کہنا، دشوار ہے جہاں میں عزت سے اس کا رہنا، ڈر ہے پڑے نہ صدمہ ذلت کا اس کو سہنا، چاہو اگر بڑائی کہنا بڑوں کا مانو، تم کو نہیں خبر کچھ اپنے بڑے بھلے کی، جتنی ہے عمر چھوٹی اتنی ہے عقل چھوٹی، ہے بہتری اسی میں جو ہے بڑوں کی مرضی، چاہو اگر بڑائی کہنا بڑوں کا مانو۔ یہ تھا نظم، یہ نظم الطاف حسین حاجی صاحب نے تحریر کیا ہے۔ ہم اس کے معنی پر تھوڑی بہت نظر ڈالیں۔ ماں باپ اور استاد، سب ہے خدا کی رحمت۔ پیارے بچوں، ماں باپ اور استاد ہمارے لیے سب سے بڑی رحمت ہوتی ہے، یعنی مول موج استاد سانہِ خٲطرٕ ساروی کھۄتہٕ بٔڑ رحمت ہے، روک ٹوک ان کی حق میں تمہارے نعمت۔ یُس زن کُنہِ ساتہٕ آسہِ روکان ٹوکان کُنہِ بُرٕ کامہِ نِش، یا سُہ چھُ آسان سانہِ خٲطرٕ صرف رحمتٕے، کڑوی نصیحتوں میں ان کی براہ عمل، اہنٛزٕ ٹیٚچھِ نصیحت یُس اَسہِ وقتی طور بُرٕ لگان چھُ مگر سانہِ خٲطرٕ چھُ آسان آبِ رحمت۔ چاہو اگر بڑائی کہنا بڑوں کو، اَسہِ پَزِ چاہو کیٛاہ، اَسہِ پَزِ ہمیشہِ بڑن زِٹھٮ۪ن ہُنٛد مانُن، یَتھ منٛز بوٚڑ بوے ٲسۍتن، بٔڑ بیٚنہِ ٲسۍتن، مٲج ٲسۍتن، مول ٲسۍتن، اُستاد ٲسۍتن یا گامُک کانٛہہ زیُٹھ ٲسۍتن، اَسہِ پَزِ تِہنٛزن کتھن پٮ۪ٹھ ہمیشہِ عمل کرٕنۍ، تِکیٛازِ تِمن چھُ پننہِ زندگی منٛز یِمن چیٖزن ہُنٛد آسان تجربہٕ گوٚمُت۔ ماں باپ کا عزیزو مانا نہ جس نے، ییٚمۍ نہٕ مٲلِس ماجہِ ہُنٛد مون، دشوار ہے جہاں میں عزت سے اس کا، تٔمۍ سُنٛد زندگی چھُ دُنیا جہاں یعنی دُنیاہس منٛز ہمیشہِ مُشکلن ہٕنٛز گُزران۔
डर है पड़े न सदमा ज़िल्लत का इसको सहना चाहो अगर बढ़ाई कहना अस पज़ हमेशा अगर न अस मानो अल्लाह ताला बचे अस मा पे तेल रसवाई तो रसवाई या बदनामी हुन अल्लाह ताला बचे सामने कर तुमको नहीं खबर कुछ अपने बारे तिकेज टाठो बचो तुम लकट वंस मज कम तुम पाई युस जन इन वाली जिंदगी असल क्या तो ठीक क्या तम चीज नश तुम बेखबर जितनी है उम्र छोटी उतनी है अकल छोटी तिकेज यीज तुहज अकल कम तीज तुहज यीज तुहज उम्र कम तीज तुहज अकल ते है बेहतरी उसी में जो है बड़ों की मर्जी हमारे लिए बेहतर यही है कि जो बड़ों की मर्जी है हम उसी पर अमल करें चाहो अगर बड़ाई कहना बड़ों का मानो अगर हमारे लिए बड़ाई है तो हमें इस पर अमल करना जो हमें अपने माँ बाप या उस्ताद या बड़े लोग कहेंगे ये था इस सबक का खुलासा अब हम नज़र दौड़ाएंगे नीचे लिखा हुआ है पढ़े और समझे ये वो अल्फाज है जो इस नज़म में हमें आए हैं उनके माने पर हम नज़र दौड़ाएंगे पहला जो लफ्ज़ है वो है रोक टोक इसका माने है पूछ गछ मना करना बाज रखना दूसरा है अमृत आबी हयात अजीज़ प्यारा दुश्वार मुश्किल सदमा दुख ज़ल्लत रसवाई बदनामी सहना बर्दाश्त करना बेहतरी भलाई ये थी इस सबक के अल्फाज और माने और एक है सोचे और बताए ये चंद सवालात हैं इनका जवाब मैंने यहाँ किताब पर ही लिखा है और कोशिश की है कि शॉर्टकट यानी पहला जो सवाल है शायर ने खुदा की रहमत किसे बताया इसका जवाब यहाँ किताब पर ही मैंने आपके लिए तहरीर किया है शायर ने माँ बाप और उस्ताद को खुदा की रहमत बताया है दूसरा सवाल है माँ बाप की कड़वी नसीहतें हमारे लिए क्या असर रखती है माँ बाप की कड़वी नसीहतें हमारे लिए आब हयात होती हैं माँ बाप का कहना न मानने का क्या नतीजा होता है यह सवाल नंबर तीसरा इसका जवाब है माँ बाप का कहना न मानने का नतीजा ये होगा कि हम ज़िंदगी में कभी कामयाब न होंगे और यहाँ लिखा हुआ है हमें अपने बड़ों की मर्ज़ी पर अमल करना चाहिए जो कुछ वो कहें हम वही करें हमारा फ़ायदा इसी में है शायर ने ये बात बहुत उम्दा तरीके से एक बंद में कहा दी है वो बंद लिखी जो जिस बंद में शायर ने यह बात कही है वो इस नज़म का आखिरी बंद है आप वहाँ देखिए है बेहतरी उसी में जो है बड़ों की मर्ज़ी चाहो अगर बड़ाई कहना बड़ों का मानो और नीचे और एक सवाल है मिसाल देकर कालम अलिफ और कालम बे में दिए गए अल्फाज और उनके माने मिलाए यहाँ कालम में दिए गए हैं एक तरफ अल्फाज हैं और दूसरी तरफ उनके माने हैं एक तो उन्होंने वहाँ से ही हमारे लिए मिसाल रखी है मिसाल पहली जो है सदमा दुख इसी तरह हम इनको मिलाएंगे मैंने किताब पर ही आपके लिए ये मिलाए हैं आप नज़र रखें किताब पर जो पहला लफ्ज़ है वो ज़िल्लत इसका माने हम जब यहाँ ढूंढते हैं तो इसका माने है बदनामी दूसरा लफ्ज़ जो है बेहतरी इसका माने है भलाई तीसरा है दुश्वार उसका माने है मुश्किल और चौथा है रोक टोक उसका माने है मना करना किसी गलत काम से रोकना और आखिरी जो है अजीज़ इसका माने है प्यारे हम आगे बढ़ेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है नोटबुक पर लिखिए ये आपको सिर्फ अपनी कॉपी पर तहरीर करना है माँ बाप और उस्ताद खुदा की रहमत है मोल मोज उस्ताद सान खतर खुदा सद बड़ बार रहमत उनकी कड़वी नसीहतों में अमृत भरा होता है यम तन नसीहत करान तथ मन सान खतर आब हयात बड़ों का कहना मानना चाहिए
जो बड़ों का कहना नहीं मानता वो इज्जत नहीं पाता। जो बड़ों का कहना नहीं मानते उनकी ज़िंदगी इज्जत से नहीं गुजरती है। हमें हमेशा अपने बड़ों का कहना मानना चाहिए। और एक सवाल है, दिए गए वाहिद के मुकाबले में जमा और जमा के मुकाबले में वाहिद लिखिए। मिसाल दी हुई है, मिसाल रात रातें। पहले हम ये देखेंगे कि वाहिद क्या होता है, जमा। इसके लिए हमें ये है, वाहिद एक लफ्ज़ को ज़ाहिर करता है। वाहिद एक लफ्ज़ को ज़ाहिर करता है, मसलन लड़का, लड़की, कलम। जमा एक से ज़्यादा लफ्ज़ों को ज़ाहिर करता है या चीज़ों को ज़ाहिर करता है। मसलन लड़की का जमा जो है लड़कियाँ, लड़का का लड़के। इसी तरह यहाँ दिए गए हैं वाहिद बात, इसका जमा है बातें। दवात, दवातें। लकीर, लकीरें। चाल, चालें। लात, लातें। सड़क, सड़कें। ज़मीन, ज़मीन। उर्दू में कुछ ऐसे अल्फाज भी आते हैं जिनको वाहिद भी कहा जाता है और जमा भी कहा जाता है, जैसे ज़मीन, ज़मीन। दलील, दलायल। ये था प्यारे बच्चों आज का हमारा सबक। आप बच्चों को अल्लाह ताला सही सलामत रखें और आइंदा हम और एक सबक उठाएंगे, तब मैं आपके सामने फिर पेश होऊंगा। तब तक खुदा हाफिज़।